अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हो, जिसमें हमारी टीम के मेंबरान और आप लोग और सिमल शेख तो शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद Given the sheer करते number of हैं जहाँ people होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती है। सजेस्ट कमेंट और शेयरिंग ज़रूर किया करें आप लोग। तो जो लोग हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं, जो बिल्कुल। नए आ रहे हैं या जिन्होंने ज्वाइन बिल्कुल, किया, उसका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें धन्य जो है धन्य हमारी धन्यवाद बोले ना। धन्यवाद हाँ, हम धन्य लोगों धन्य के धन्य धन्यवाद। धन्यवाद कि भाई आप लोगों ने हमारे चैनल को जो है वो सिलेक्ट किया और उसके साथ और लाइक कमेंट करके ऊपर जी ऊपर हाँ, पहुंचा दो। बस नहीं, ये बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंचाना है, जी यानी जी कि जी टॉप हाँ, पे मतलब पहुंचाना ये कि लेकिन आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत। क्योंकि जब आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ये तो यानी हमें बहुत खुशी होती है कि और हमारा जज्बा भी फिर उसी के साथ साथ इंक्रीज़ होता है कि हम वो वाला ज़्यादा जज्बा से तो नहीं ज़्यादा होता, कौन से जज्बा ईमानी वाला तो नहीं नहीं, वो तब अभी तो नहीं, यूट्यूब पे चल रहा है ना ये, वो जज्बे जगह जगह पे डिपेंड करता है। अभी तो हम यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए यूट्यूब पे नहीं बैठे हुए, चेयर पे बैठे हैं। चेयर पे यूट्यूब को ज्वाइन उस किया वाले हुआ है। जज्बे ने भी हमें बर्बाद किया। नहीं खैर बार ये इसको छोड़ दो। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अश्नवी वैष्णव एक्सप्लेन इन दिल्ली अबाउट डिटेल अबाउट द सुपर ऐप ऑफ इंडिया रेलवे। तो खैर देखते हैं इस वीडियो में क्या डिटेल हो रही है। अश्नवी रेलवे जी के? रेलवे के मिनिस्टर हैं, तो कोई बनाई होगी उन्होंने इसको शायद कनेक्टिव देखते हैं। हाँ सही है। राहुल Given the Simple. sheer number of people who are interested in Indian Railway tickets and they typically book on IRCTC, explain right now what this Indian Railway super app can do, which I can't do right now. So, Super App will be one-stop shop built in a very nice methodical architecture where everything that you do in a train service will be catered to. For example, if you find any issues related to food, for example, if there are any problems related to cleanliness, for example, buying ticket, for example, making sure that you get you can communicate to your near ones that okay, train is going to arrive at this particular point of time, the message can directly go to the person. Everything associated with the super app has been designed keeping the user at the center of this entire design. A passenger who would like to think about taking a train journey from that point onwards to the planning, to the actual travel booking, to the actual travel and the period beyond that. For example, in the first 100 days itself, we will be taking up so many programs which are totally user focused. For example, the refund of a cancelled ticket. Why should it take 30 days? Why can't it be done instantaneously? Those are the things which are user friendly. They will all be done using the Super app. Give me some more details. You've got a 100-day program from what I So gather from that let me response. complete the. What are the other sorry. things to expect in the first 100 days when it comes to the railways? You've given one example. Rahul, just give me one more second to explain the complete that concept of Vande Bharat Sleeper, Vande Bharat Metro, Amrit Bharat trains and the Vande Bharat chair car. Chair car will be for about 500 kilometers where you can comfortably go sitting. So that is the entire spectrum of train sets, and in parallel we are increasing the capacity of railways, because without capacity you cannot increase the services, and without increasing the services you cannot really reach the zero waiting list target that we have kept for ourselves in the next 6 to 7 years. So increasing the capacity in the last 10 years, 31,000 kilometers of railway tracks have been done. Just the year which got completed on 31st March, we ended with 5,300 kilometers, adding one entire Switzerland or a Belgium or an Austria to our railway network. And this is on the top of the 5,240 kilometers done in the previous year. So that's the pace at which infrastructure is increasing. You cannot run train on road, right? Train has to be run on tracks. So tracks have to be built, have to be constructed, which is what Congress never used to do. Congress would just announce a new train without actually looking at the infrastructure that is required to run it.
So that's a fundamental difference. So we are increasing capacity, having new types of trains, redeveloping the stations, bringing user experience in a totally new way, making sure that the maintenance practices totally get overhauled, totally changing the maintenance practices, having absolutely world-class train cleaning systems, getting totally new designs of toilets. It's a total focus. See, we are a country of 140 crore people and we are a very compact country. We are today carrying about 700 crore people. We can easily, by these initiatives, will be able to easily reach 1,000 crore number in the coming 5 years. That's the way we are working in railways. That's Prime Minister Modi ji's vision. अस्सलामुअलैकुम। हाँ? होश में ला रहा हूँ। होश में है नमस्ते। भाई, हम होश में। अच्छा। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है टाइटल अच्छा, वाइटल सबसे नहीं पहले- है, एक्स्ट्रा है। अच्छा। हाँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों में डिजिटल जो चीज़ें हैं या एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, वो ऐसा लगता है कि ये तो प्राइवेट काम है। गवर्नमेंट इन चीज़ों में कहाँ पड़े, गवर्नमेंट डिजिटल चीज़ों में कहाँ पड़े, गवर्नमेंट को तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट का तो काम ही नहीं है। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट लेवल पे भी एप्लीकेशंस और डिजिटल को मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करना, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना, एक चीज़ अगर आपके पास आ चुकी है दुनिया में, मिसाल के तौर पे वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप उस इदारे से आप उस चीज़ से कनेक्ट हो सकते हो। अब मिसाल के तौर पे पहले होता था फ़ोन नंबर, कि एक इदारे का फ़ोन होता था, एक उसका मोबाइल PTCL नंबर होता था। घरों में लोग फ़ोन करते थे कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है, या जहाज़ के हवाले से, प्लेन के हवाले से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल हुआ। अब एक एप्लीकेशन का वाला मामला शुरू हो गया है, तो उसमें आप इदारा जो है वो सारी डिटेल डालता रहता है वक्त के साथ साथ कि हमारी कौन सी मतलब है कि ट्रेन आ रही है, कौन सी जा रही है। तो जब ये चीज़ें हैं तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल क्यों ना किया जाए, जिससे सबको आसानी हो। अब एक बंदा जैसे मिसाल के तौर पर टिकट करवाना है, टिकट कैंसिल करवाना है, आगे की अपडेट से 500 नए रीडेवलप रेलवे स्टेशन को इन्होंने करना है। कौन सा रेलवे स्टेशन बन गया, कौन सा का काम चल रहा है, कौन सी ट्रेन लेट हो गई है, कौन सा क्या मसला चल रहा है, आपको एप्लीकेशन के थ्रू सारी चीज़ें पता चल रही है। तो मैं कहूँगा इससे खूबसूरत चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है और हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन होती जा रही है, जिससे लोगों का वक्त बचता है, लोगों को आसानी होती है और गवर्नमेंट की हर चीज़ यानी यूँ समझ लो कि कोई भी इदारा जो है वो आवाम से डायरेक्ट टच में होती है मेरे ख्याल में। और इससे मेरे ख्याल में करप्शन भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जी मैं भी इस टॉपिक पे ही बात करने वाला था। करेक्ट तो भाई। पहले ये सिमल कर लें फिर मैं कोई बात शर्त करूंगा। तो नहीं है सिमल पे? नहीं मसला जब है तो वही वाली चलो बात है ठीक। नहीं कि- नहीं, बात ये नहीं, बात ये है कि आपने कहा डायरेक्ट हो गए हाँ। गवर्नमेंट से, तो एक तो सहूलत भी हो गई कि आप घर बैठे आप टिकट अपना बुक टिकट करवा करेंगे, लें। हाँ। आप अपनी ट्रेन देख लें, आपकी ट्रेन किस टाइमिंग पे है, कौन से डे है। अगर आपने रिटर्न करवाना है तो वो भी आप घर बैठे, यानी कि आपको आना जाना नहीं लगेगा, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगता था आने जाने में, टाइम भी लगता था और किराया भी लगते थे। तो उन चीज़ों से आप बच गए, घर बैठ के आप सारी चीज़ें कर सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत अच्छा मामला हो गया कि आप कहीं पे भी, ऑफिस में है, घर में है, किसी ओकेजन पे भी, और आपने टिकट बुक करवानी है तो फ़ौरन आप करवा सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ही है। कुदरत ने जब आपको एक सहूलत दे दी है बिल्कुल, अंग्रेज़ों के तो आप उसको अवेल करें। तो इसको अपनी देखिए ज़िंदगी तारीख बिल्कुल। बात ये है कि आईटी की दुनिया है हाँ, और आईटी को अगर आपने पूरी, मैं तो कहता हूँ कि इसको बाई फोर्स कानून बना देना चाहिए जिन कंट्रीज़ को कि भाई ये आप आईटी के थ्रू करेंगे। मिसाल के तौर से एजुकेशन वाला सिस्टम है और टोटल आईटी पे कर दें, तो यानी बाकी डिपार्टमेंट के वो सब आईटी पे कर दें। वेबसाइट लेकिन होनी मसला चाहिए। तो अभी एक जो तुम बात कर रहे थे करप्शन, जो करप्ट लोग होंगे वो नहीं भागते हैं चाहिए। आईटी से, हाँ। क्योंकि आईटी के अंदर आने के बाद देखें असल में ये मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो ये ऐप वगैरह का करा है, अब इनका काम ऑलमोस्ट ख़त्म होता चला जाएगा। इनको अच्छा फिर ये कि आपके पास ये घर बैठे भी अगर चाहें, अब आप जैसे ये हैं नेट के ऊपर ये सारा आपके पास ये लैपटॉप है, आप इसे घर पे ले जाएं, पूरी दुनिया आपकी अप्रोच में, यहाँ आ जाएं तो पूरी दुनिया। अब आप इसको कितना यूज़ करते हैं, आप इससे भागेंगे कि यार मैं इसमें तो सारा मेरा डाटा जो है अकॉर्डिंग टू वो आ रहा है रूल्स के यूँ मुताबिक, समझ लो कि इनकी अपनी जो प्रोग्रेस है वो भी दिख रही है। वो दिख रही है। मेरा मकसद अभी आप इसकी बहुत सी प्रोग्रेस वगैरह मुझे बताते हैं तारीख, तो मैं हैरत करता हूँ
कि ये तमाम चीज़ें जब ये हैं, जब ये हर चीज़ को पकड़ रहा है, हर चीज़ की डिटेल आपको दे रहा है, तो आप क्यों इससे भागते हैं? अब ये यहाँ पर इन्होंने जो अपने ऐप बनाई, अब इसके अंदर पैसेंजरों को कितना अभी ये जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ भी बैंक की ऐप है, उसके अंदर आप सिर्फ बैंक में आप उस वक्त जाएंगे जब आपने अकाउंट खोलना और फिर ऐप अपनी डाउन कर लें, किसी ज़रूरत ही नहीं है बैंक की। आप बैठे हुए पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सब चीज़ें डिजिटल होने तो की कितना वजह से। यानी उसको वो बात तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि उनका फोकस जैसे मिसाल के तौर से उन्होंने कहा था कि ये अपने जो हैं ये मोदी साहब, इनका फोकस ये है, तो उन्होंने कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ट्रेन के जो वो भी बढ़ाई, कैपेसिटी भी बनाई, जैसे कैपेसिटी बढ़ाते हैं उसी तरीके से ट्रेनें भी, और वो ट्रेनें भी जो है वो पूरे लिंक अप हैं इसी आईटी से और रिलेटेड। कितना ज़्यादा एक्सपेंस कम हो जाएगा इस काम के लिए, हाँ, मुलाजिम रखने जी, पड़ते जी, हैं, जी। तो वो सारा काम एक एप्लीकेशन हाँ। कर रही होगी और उस एप्लीकेशन को चंद लोग चला रहे हैं। और उस एप्लीकेशन से अर्निंग भी हो रही होगी, जितना यूज हाँ, होगा हाँ, वो बिल्कुल। एप्लीकेशन, तो वो उसकी अर्निंग भी आ रही होगी। उसका असल में आईटी के ज़रिए अर्निंग, देखे ना, बात ये है कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है कि ये इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। ये वो बता सकता है बंदा के जो इससे अर्निंग करे। जैसे हमारे यहाँ मसद ये मोबाइल के अंदर बहुत सी ऐप्स वगैरह हैं, उन ऐप्स वालों का अगर आप देखें तो वो उनसे जो चीज़ें दूसरी कंपनी है उनसे अप्रोच करती हैं कि हमें ये डाटा चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, तो वो डेटा बेचती हैं। हाँ, ये तो इस लिहाज से इनकम का फोकस अलग होता है, मकसद सिर्फ होना फेसबुक चाहिए। हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, हाँ। लेकिन फेसबुक हाँ। के पास हमारा डेटा जी, है, जी, तो सारा वो वो डेटा बेचते हैं बेचते हैं, मार्केटिंग हाँ, जी, कंपनियों को। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जो बातें कर रहे हैं ना, जी, यानी ये बातें भी रिकॉर्ड हो रही हाँ, हैं बिल्कुल बिल्कुल। और ये हाँ। जाती है सारी मार्केटिंग, तो सारी हर बिल्कुल। इंटरनेट से तो वही कमाई लेकिन बहरहाल ये इनका ये जो ये सुपर ऐप। मिनिस्टर है, क्या नाम है? अश्विनी भी है। हाँ। ये बहरहाल इनकी रेलवे मैंने पहले भी मिनिस्टर है वीडियो ये। में बहुत पढ़े देखा, लिखे तो हैं। बहुत ज़्यादा बहुत और ज़्यादा। फोकस्ड हैं अपने मुल्क में जनता को जो है सहूलतें देने के इनकी लिए। तो वीडियो बहरहाल ये- मैंने जब देखी थी, जब अभी इंडिया में एक ट्रेन का हादसा हुआ था और ये आधी रात को उठ के उस हादसे अच्छा। वाली जगह पे गए थे और As अपने a हाथों minister। से सारी चीज़ें करवा रहे बहुत थे, बढ़िया। हर चीज़ को फोकस कर रहे थे, देख रहे थे। इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये चीज़ों को बड़ी अच्छे से ब्रीफ करते हैं। उनकी Brief बात हाँ, आधे से काट दी तो उनको हाँ, रोका, हाँ, तो बोला क्या मैं भी एक्सप्लेन कर रहा मैं हूँ। भी आया हूँ, तो उनको बिल्कुल। तो बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।